Identify the adverb of time. Today. Identify the type of adverb of the underlined word. Why don't you listen to your teacher attentively in the class? C option ठीक है. Adverb of manner, attentively के according. Identify the adverb of the word happy. B option ठीक है. Happily. Identify the underlined verb. This cat's fur feels silky. तो feels जो है ये linking verb है. Identify the neuter gender from the given nouns. कंप्यूटर इसमें न्यूट्रल जेंडर है. फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग. ए ऑप्शन ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स. आई कांट फाइंड माय ग्लासेस. वेयर आर दे. बी ऑप्शन ठीक है. आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन. सी ऑप्शन सोप. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस. ही इज एज फास्ट एज अ लायन. ए ऑप्शन ठीक है. सिमिली. आइडेंटिफाई द मिस रुखसाना क्वेश्चन नंबर भी बोल लें साथ. क्वेश्चन नंबर भी बोलें ताकि बच्चों को पता चले. Question number 10. Identify the type of underlined clause. The land gets wet when it rains. Land gets wet. It's a main clause. A option ठीक है. Question number 11. They could not attend the meeting because they had not reached the office in time. C option ठीक है. Question number 12. In the filling the blank with the adjective of courage. Pakistan is known for its courageous army. B option ठीक है. Question number 13. Select the correct punctuation mark to filling the blank. The X dash manager helped us understand this document. A option hyphen का sign आएगा. Question number 14. Identify the type of the following sentence. It was a productive way to do drawing activity. तो ये सिंपल सेंटेंस है. ए ऑप्शन ठीक है. ये दोबारा वही स्लाइड है. जी कर दी है. शो हुई है आपको? हो गई है. क्वेश्चन नंबर 15. Synonym of the forefathers, ancestor. D option ठीक है. Doha. Question number 16. Doha agreement was signed between US and Taliban in. A option ठीक है. February 2020. Question number 17. Which of the following is an agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and security? A option ठीक है. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Question number 18. The member countries are represented by a board of governors. C option ठीक है. Question number. American forces entered in Afghanistan in 2001. B option ठीक है. Question number 20. Yemen crisis started in 2011. B option ठीक. 2015. D option ठीक है. Question number 21. Aisha A. Malik has been appointed as first female judge of Supreme Court. B option ठीक है. Question number 22. Iraq invaded Kuwait in. C option ठीक है. August 1990. Question number 23. Which of the following is not paper size? C option ठीक है. Landscape. Question number 24. Computer operators. B option ठीक है. Operates the device which input and output data from the computer. Question number 25. जी मैम हो गई मुकम्मल कर वाले. जी बिल्कुल ठीक है. शुक्रिया जी. क्वेश्चन नंबर 25 को देखें जरा गौर से कि अली ब्रॉड अ मोटरसाइकिल फॉर 60,000 एंड sold it for 66,000. His percentage profit is. हमने ये फाइंड करना है कि अली ने 60,000 की मोटरसाइकिल खरीदी और उसे उसने 66,000 में बेचा, तो उसने
कितना प्रॉफिट कमाया। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको सवाल की इबारत को देखना होगा। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी है कीमतें खरीद। कीमतें खरीद आपको पता है कि कितनी है, वो है 60,000। 60,000 कीमतें खरीद है, बेची है उसने 66,000 की। तो नफा हमने फाइंड करना है। 66,000 में से हम 60,000 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 6,000। सवाल क्या था कि प्रॉफिट जो है वो आपने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए जो प्रॉफिट आपने निकाला है, जो नफा निकाला है 6,000, उसे डिवाइड करेंगे आप कीमतें खरीद से और मल्टीपल करेंगे 100% से। अब देखें 6,000 ओवर 60,000 मल्टीपल 100%। 6,000 के साथ 3 सिफर्स हैं और 60,000 के साथ 4 सिफरें हैं। तो 3 सिफरें 6,000 के साथ कट गई, 1 सिफर बची वो 100 में कट गई, बाकी बचा 10%। तो अली ने जो फीसद प्रॉफिट कमाया है वो है 10%। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन डॉलर जो है उसका रेट बताया गया है 280 RS यानी रुपीज, यानी एक अमेरिकन डॉलर जो है 280 रुपए का आता है या बनता है। तो आपने बताना है कि 56,000 में कितने डॉलर मिलेंगे। मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि यूनिटरी जो मेथड है उसमें अगर ज्यादा चीजों की कीमत दी गई हो और कम की मालूम करनी हो, यानी 280 में $1 है तो हम तकसीम करते हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करना है 56,000 डॉलर को। अगर आप कहें कि $1 में कितने डॉलर मिलेंगे, तो आप देखें 1/280 हो जाएगा। तो हम 56,000 को 280 से कट करेंगे या डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सिफर से सिफर कट ऑफ हो गई। 28 का अगर टेबल पढ़ें तो 28 2 56, 2 और 7 2 सिफरें बचती हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा $200, यानी 56,000 में जो हम डॉलर खरीदेंगे वो $200 होंगे। अगला सवाल है कि जो हमजा है उसके पास टोटल रकम जो है वो 2,000 है। उसने 14% ऑफ दीज अमाउंट, पिछली मैथ के जो क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने बताया था कि ऑफ शो करता है प्रोडक्ट या जरब को। तो 40% ऑफ की जगह पे हम जरब लगाएंगे और साथ 2,000 लगाएंगे। तो नीचे 2 सिफरें हैं, 2 सिफरों से 2 सिफरें कट जाएंगी। 14 का टेबल आप 2 तक पढ़ेंगे, यानी 14 2 28 और जो सिफर बच गई वो साथ लगा देंगे। 280 की उसने स्टेशनरी खरीदी है। हमें बकाया रकम बतानी है। तो हमने जो 2,000 है उसमें से 280 निकाल देना है, तो बाकी 1720 बचेंगे। एक चीज आप मेरी जहन में रखिएगा, गेट टेस्ट या कोई भी एडमिशन टेस्ट है, अगर उसके मैथ के क्वेश्चन आप जिस मेथड से मैं करवा रही हूँ ऑरली कट करके कर लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और इंशाल्लाह गलत भी नहीं होंगे। अगला जो सवाल है उसमें बताया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है 75,000। प्रिंसिपल अमाउंट से मुराद होती है असल रकम, किसी भी बंदे के पास जो असल रकम हो। तो इस सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट है 75,000 और उन्होंने शरह सूद या मार्कअप की जो शरह बताई है वो बताई है 9%। फिर सवाल उनका है कि 3 साल के अरसे के लिए मार्कअप जो है वो मालूम करें। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मार्कअप की शरह से, यानी 75,000 को 9/100 से और जितने अरसे के लिए मार्कअप मालूम करना हो उससे जरब देते हैं
तो 9/100 मल्टीपल 75,000 मल्टीपल 3। उर्दू में 9/100 ज़रब 75,000 ज़रब 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिफर से 2 सिफर कट गए, इन तीनों ऊपर वाली रकम को आप ऊपर में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो आपका 20,250 मार्कअप निकलेगा। वादे रहे ये 3 साल का मार्कअप है। अगर 1 साल का अलहदा मालूम करना हो तो फिर आपका जो मार्कअप मालूम हुआ वह है उसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 का निकलेगा। इक्वेटिव नंबर या मुसलसल नंबर जो थे उनको फाइंड आउट करना था। पहला अदद उसमें था जो हमने सपोज किया या लेट किया वो x था। दूसरा मैंने आपको बताया था चूंकि वो मुसलसल हैं इसलिए उसके साथ हम +1 लगाएंगे। कंडीशन कल भी हमने सही लगाई थी कि x प्रोडक्ट x + 1 = 90, लेकिन ज़रब देते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो उसकी तस्हीह करते हैं। x को पहले x से ज़रब देंगे तो वो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x 1 से ज़रब खाएगा तो x हो जाएगा इक्वल 90। 90 को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो x³ + x - 90 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप फार्मूले की मदद से हल कर लें अगर आपको वो फार्मूला आता है, अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है कि जो पहली रकम है उसको आखिरी रकम से ज़रब देना है। इस सवाल में पहली रकम x³ है और आखिरी है 90, यानी 90x³ आएगा। अब ये है प्रोडक्ट। हमें 2 ऐसे डिजिट फाइंड करने हैं कि जिनको आपस में ज़रब दें तो 90 आए, लेकिन जमा माइनस करें या प्लस करें या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम यानी +x आए। वाज़े रहे कि साइन वही दरमियान वाला आना चाहिए। तो 10, 9, 90 यानी 10 का 9 तक टेबल पढ़ें तो 90 प्रोडक्ट आता है। और मजे की बात ये है कि 10x में से 9x निकालें तो सिंगल x आता है। चूंकि हमें प्लस का x चाहिए इसलिए हम 10x के साथ जमा लगाएंगे और 9 के साथ माइनस लगाएंगे। देखिए 10x में से 9 गया तो +x बच गया और 10, 9, 90। अब हमने इन दोनों जो 4 रकमें बन गई हैं 2-2 के पेयर बनाने हैं। पहले पेयर में से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, x² है बाकी सिंगल x बचेगा और +10 बच जाएगा। दूसरे पेयर में से 9 कॉमन लेंगे तो x बाहर चूंकि माइनस है इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, x + 10 और x - 9। तो पहली इक्वेशन x + 10 = 0 और दूसरी इक्वेशन x - 9 = 0। प्लस का 10 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 9 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। जब वेरिएबल की कीमत पुट की जाती है तो नेगेटिव साइन को नहीं देखते, हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको पुट करते हैं। तो जो पॉजिटिव 9 है वो हो गया x यानी पहला अदद, और जब उसके साथ हम +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 10 यानी 9 + 1 = 10। पहला अदद 9 और दूसरा 10 हो गया। अब एक इक्वेशन दी गई है, इन्होंने जो दी है वो है 3x² + 4x - 9। तो उन्होंने कहा है कि इसकी रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करें। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें जो पहला हिस्सा होता है जिसकी पावर 2 होती है, चाहे वो x² हो चाहे y² हो, वो एक इक्वल होता है। तो x² के साथ राइट साइड पे देखें 3 है तो a की पावर होगी 3, जो सिंगल x होगा वो b होगा, b यानी x के साथ कितना है 4 तो b की पावर होगी 4 और 9 के साथ कोई डिजिट नहीं है वो c होगा। रूट्स के जो प्रोडक्ट है या हासिल ज़रब का फार्मूला है वो होता है c/a, यानी आपने c की प्राइस लगानी है और बटा a की प्राइस लगानी है। c की अभी आपने निकाली है -9
ओवर 3 लगाएंगे तो 3 का टेबल पढ़ने से 3 3 9 -3 आंसर आ जाएगा। इससे अगले सवाल में जाएं तो ये सवाल आपकी बुक में गलत सॉल्व किया गया है। बुक में सवाल ये है कि एक क्लास में जो लड़के हैं वो हैं 120। मैं आपको इसका जो है ना क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं। सवाल नंबर है 36 कि 120 तलबा की क्लास में 50 लड़के और बाकी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की निस्बत तमाम लड़कों से मालूम करें। क्वेश्चन ये बुक में रॉन्ग सॉल्व किया गया है, आप इसी प्रोसेस से कीजिएगा। कुल तलबा सबसे पहले हैं 120, लड़के उन्होंने बता दिए हैं कि 50 हैं। लड़कियां फाइंड करने के लिए आपने 120 में से 50 निकालने हैं, तो आंसर आपका आएगा 70। अब उन्होंने कहा है लड़कियों की रेशो मालूम करें कुल तलबा के साथ, तो लड़कियां हैं 70, रेशो हमने 120 के साथ लगानी है, वही 0 से 0 कट, सेम रेशो, तो 12 जो है आपका आंसर होगा। इसे पहला क्वेश्चन था कि मुसल्लस बनाने का फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला है वो ये होता है कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड यानी पहली साइड ए दूसरी बी, दोनों को जमा करें तो वो सी से बड़ा हो तब ही मुसल्सल बनेगी। हम जो वो ऑप्शन है उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में है 2 जमा 3, 2 और 3 को प्लस किया, 5 है, 5 बड़ा नहीं है 8 से, तो ये सब ऑप्शन हमारा गलत होगा। दूसरे में 1 जमा 2 है, 1 जमा 2 मिले हैं तो 3 हो जाएंगे, और 3 4 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये भी हम पुट नहीं कर सकते। 4 जमा 5 ग्रेटर देन 11, 4 और 5 9 होता है, 9 11 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन भी रॉन्ग है। अगला ऑप्शन है 3 + 4 ग्रेटर देन 5, जो शर्त हमने अभी बनाई है ना, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन सी, उसके हिसाब से। तो 4 और 3 हो गए 7, और 7 बड़ा होता है 5 से, तो ये कंडीशन सही है।